मेले नू चलीए हाय चल मेले नू चलीए वंजली वजा शोरा लम्मे दिया वंजली वजा शोरा लम्मे दिया। क्या देख रहे हो? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ 11:05 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਗਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੱਜਣਾ ਲੱਗੇ ਗਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਰਾ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੱਗ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੱਗ ਵੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਂ। वो कोई आ जाऊंगा। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਘਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਆ ਲੈ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਆ ਲੈ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹੋ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਘਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾ ਸ਼ੋਰਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾ ਸ਼ੋਰਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਚੈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਕਰ ਪਾਈਏ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 90 ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਸ, ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਧਿਆਨ ਚ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਅ ਡੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ 1949 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ कर रहे हैं। धन्यवाद गगन। सभी को बहुत प्यारा सत श्री अकाल। मेरा नाम श्रेय रावत है और मैं पटियाला टीम के साथ काम करता हूँ साझी शिक्षा में। तो अगर साझी शिक्षा के बारे में बात करी जाए तो क्योंकि आज के दिन बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं इस कॉल में, तो आई थॉट कि थोड़ा सा 5-10 मिनट लगा के हम थोड़ा जान लेते हैं साझी शिक्षा क्या करता है, और फिर हम आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, हमारे जो यूथ लीडर्स हैं, सभी से थोड़ा थोड़ा जानेंगे साझी शिक्षा ने पिछले 1 साल में पटियाला में क्या क्या किया। तो साझी शिक्षा इस विजन से काम करता है कि वी वांट टू ट्रांसफॉर्म पंजाब इनटू अ लैंड ऑफ होप, करेज एंड पॉसिबिलिटीज। सो उम्मीद, हौसला और संभावनाएं ये हमारे पंजाब में आए थ्रू एजुकेशन। तो ये काम हम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। तो ये इस काम को करने के लिए हमारा जो मिशन है वो ये है कि जो पंजाब के बच्चे हैं वो फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज, वो एक जो फाउंडेशनल लर्निंग है वो अचीव कर पाए। और वो कैसे अचीव कर पाएंगे? जो हमारे यूथ चेंज मेकर्स हैं, यूथ लीडर्स हैं, वो जुड़ पाए साथ में, और इस जो एक काम है पंजाब को और बेहतरीन बनाने का, उसके साथ वो जुड़ पाए। तो ये काम पिछले 3 सालों से हम कर रहे हैं और अभी करंटली हम 3 डिस्ट्रिक्ट में हैं, फतेहगढ़ में, रोपड़ में और पटियाला में। और अगर पटियाला की बात करूं तो हम बेसिकली जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है इसमें हमें 850 स्कूल और 2000 कुछ टीचर्स के साथ काम करा है पिछले 3 सालों में। और इसी में जब हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हम इम्पैक्ट कर पाए तो 52,000 बच्चों के साथ हम जुड़े हुए हैं। पटियाला डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इस समय 9 यूथ लीडर्स हैं जिनकी आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हैं और वो कॉल में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी यूथ लीडर्स पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं और पिछले 1 साल से अलग अलग ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं पटियाला के विद एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था साझी शिक्षा के काम के बारे में, पिछले 3 साल से हम कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, ऑल्सो पटियाला में किस तरह से कौन कौन यूथ लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं। हमारे साथ आज कॉल में आशीष जी हैं, आशीष शुक्ला जी। तो आशीष जी इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव के साथ जुड़े हुए हैं पिछले बहुत सालों से, और आशीष जी हमारे वन ऑफ द मेंटर्स हैं, वन ऑफ द कोर मेंटर्स, जो कि हमें हमारे काम के बारे में काफी डिटेल में बता पाते हैं अपने अनुभव से। तो आशीष जी से जानना चाहेंगे, जब वो पटियाला आए, जब वो फतेहगढ़ गए तो उन्होंने क्या कुछ देखा हमारे काम के बारे में, यूथ लीडर्स को किस तरह से वो टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ बातचीत करते हैं। तो आशीष जी से जानते हैं उनके अनुभव के बारे में कि उन्होंने यहाँ पे क्या क्या देखा यूथ लीडर्स को करते हुए। ऑल्सो जो हम कोर काम करते हैं, हम कलेक्टिव्स फॉर्म कर रहे हैं, टीचर्स कलेक्टिव, कम्युनिटी कलेक्टिव। तो उसके बारे में भी थोड़ा जानेगा आशीष जी से कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आज एजुकेशन में इन टीचर कलेक्टिव की, कम्युनिटी कलेक्टिव बनाने की जरूरत है। तो आशीष जी, मोस्ट वेलकम टू द कॉल।
थैंक यू शरद, थैंक यू श्रेय। श्रेय, थोड़ा नेटवर्क इशू है तो प्लीज आप बताइएगा अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो मैं वीडियो हाँ जी। फीड फिर ऑफ करूँ। जी, हाँ जी। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सबका स्वागत है। तो एक तो मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि समय समय पर जो इस तरह के ऊर्जा देने वाले जो अवसर बनाए जाते हैं साझी शिक्षा में, उससे क्या होता है कि हम सब लोग इकट्ठे उन चीजों को देख पाते हैं और अच्छे पल जो रहे हैं उनको एक बार फिर से याद कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और आज 1 साल पूरा हुआ है पटियाला टीम का, जो हमारे यूथ लीडर्स हैं, तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट दिन है। और अच्छा लगता है जब सब लोग बैठकर बात करते हैं और अपने अनुभव रखते हैं और हम ये देखते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके बारे में हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो बहुत अच्छा रहा है। और साझी शिक्षा की अगर बात करें तो मेरा जुड़ाव साझी शिक्षा से मुझे लगता है पिछले 3 साल कोई हो गए हैं जब से मैं जुड़ा रहा हूँ अलग अलग तरीकों से। जैसे मैंने देखा है साझी शिक्षा की टीम को काम करते हुए, तो मुझे ऐसा 1 मिनट का डिस्टर्बेंस। जी, तो जो अगर हम यूथ लीडर्स की बात करें और उनको उनको जो सपोर्ट देते हैं, जो हैंड होल्डिंग करते हैं, जो उनके साथ अगर रियल मेंटर्स की बात करें तो जो साथ साथ रहते हैं कोर टीम के मेंबर्स जो हैं साझी शिक्षा के, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर यूथ लीडर्स की हम बात करें तो जो मैंने पिछले करीब 11 साल का मेरा एजुकेशन का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैंने जो टीम्स देखी हैं वर्किंग ऑन एजुकेशन, साझी शिक्षा की टीम के जो यूथ लीडर्स हैं, मैंने खास तौर से ये पाया है कि वो सीखने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी टू लर्न। और ये बहुत मुझे बहुत ये कहेंगे कि बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव चीज लगती है, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है, और केवल हम में से नहीं बल्कि हमारे समाज में भी कोई ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ पता हो। कोई ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ पता हो। तो अगर हम अपने आप को इस तरफ खुला रखते हैं कि हम नया सीखने के लिए तैयार हैं, तो जो बदलाव हो रहे हैं उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं कि कहाँ हमें अपनी भूमिका लेनी है और कहाँ हम उन बदलावों को आगे ले चलने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहला जो चरण होता है, जो हम लोगों ने सीखा है अपने काम के दौरान, कि सीखने के लिए तैयार रहना होता है। और साझी शिक्षा के जो यूथ लीडर्स हैं वो सीखने के लिए तैयार मिले। जब भी हम इंटरेक्ट किए, वो बंधे नहीं है किन्हीं वंचनाओं से कि जो हम सोच चुके हैं बस वही करना है, जो हमने तय कर रखा वही करना है। दे आर रेडी टू लर्न। तो नया नया क्या होता रहता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपका जो सेंटेंस है कि होप, करेज एंड पॉसिबिलिटीज, तो पॉसिबिलिटीज को हम तभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब हम खुद नया सीखने के लिए तैयार रहेंगे। तभी हम दूसरे बदलावों को जो है आगे लाने का रास्ता खोल पाते हैं। और ये मुझे यूथ लीडर्स में दिखाई दिया है। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो मैंने अनुभव की है कि किसी भी टीम को ये सीखने की जरूरत है। दूसरी बात है कि सारे जो मेंबर्स हैं वो कहने के लिए तो शुरुआत कर रहे हैं अपनी। अगर पटियाला टीम की बात करें तो वो 1 साल उनका आज पूरा हो रहा है, बट दे हैव गुड एक्सपोजर। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स रहे हैं, उनका एक अच्छा खासा एक्सपोजर है और ये एक्सपोजर एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करता है उनको आगे बढ़ने के लिए। तो इस पर वो काफी कुछ खड़ा कर पाते हैं, चाहे प्लानिंग को लेकर हो, चाहे कम्युनिकेशन को लेकर हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो। तो इस एक्सपोजर उनको फायदा मिलता है। एक और बात जो मैंने देखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं यहाँ पर नोटिस में जरूर डालना चाहूंगा, वो है टीम स्पिरिट। कि जब हम कहते हैं कि जैसे हमने आज संविधान दिवस की भी बात की, तो कलेक्टिव एफर्ट्स जो होते हैं उनका एक जो असर होता है वो वही सस्टेनेबल होता है। अगर जो भी बड़े बदलाव है वो मिलकर ही किए जा सकते हैं। और इस टीम में जो है वो टीम स्पिरिट जो है वो रहता है। तो जब कलेक्टिवली आगे बढ़ते हैं तो जो मिलकर करने का जो सोच रहता है ना, उसमें जो व्यक्तिगत अपनी डिग्निटी है वो उसमें घोल देनी होती है। और इसकी ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है जो साझी शिक्षा के यूथ लीडर्स में मैंने देखी है, कि उनको वो खुद इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि उनकी टीम इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वो टीम का वैल्यू बहुत बढ़ा देता है। और इस वजह से ही ये टीम बहुत कुछ कर पाती है और बहुत कुछ नया सोच पाती है। एक और जो इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर हम रेडी टू लर्न है और टीम स्पिरिट है हमें, तो हम नया कुछ एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो कई बारी वो थोड़ा सा अलग भी लगता है कि क्यों हम लोगों ने जो सोच रखा है उस पर चलने के बजाय क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। बट वो टीम का एक पॉजिटिव इंडिकेटर भी है कि नया नया एक्सप्लोर करने की तरफ भी हमारा हर समय ध्यान रहता है।
तो वो यूथ लीडर्स ने और साझी शिक्षा की कोर टीम ने मिलकर ये जो है बिल्ड किया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जितना मजबूत रहेगा उतना ही हम आगे नई नई चीजों को ट्राई कर पाएंगे और नया कुछ सीख पाएंगे और इसी तरीके से कुछ बदल पाएंगे। और अगर हम देखें तो एक एज का तो फैक्टर है, हम कहते हैं यूथ लीडर्स हैं तो यूथ तो है ही, पर यूथ में भी जो एनर्जी एक्सपेक्टेड है वो कई बार हमको देखने को नहीं मिलती है, उसको ठीक से चैनलाइज करना पड़ता है। बस पर जो हमारे यूथ लीडर्स हैं साझी शिक्षा के साथ मिलकर जिनसे मैं इंटरेक्ट कर पाया हूँ, वो फुल ऑफ एनर्जी है, इतना उत्साह रहता है, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो, कितनी बड़ी मीटिंग हो, उनको कोई संकोच नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक्सप्लोर करते हैं, जाकर करते हैं। तो वो जो कई बार ऐसा भी होता है कि जब लोग 5-5 गांव में एक दिन में गए और मीटिंग्स कंडक्ट नहीं हो पा रही, तभी वो एकदम जिसको कहते हैं ना कि पस्त हो गए, तो वो कहेंगे कि टायर्ड तो होते हैं पर टायर्ड ऑफ नहीं होते हैं। तो जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रख पाते हैं। और एक और बात जो मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा वो ये है कि भले हम एक छोटी टीम के साथ शुरुआत कर रहे हो, बट बड़े बड़े बदलावों को लाने का जो जज्बा है वो भी इस टीम में दिखाई दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कई बार हम अपने रिसोर्सेस की तरफ बार बार झांकने लगते हैं कि क्या हम इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बट टीम के अंदर मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े बदलाव, जैसे अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब, एक छोटी सी टीम ने सपना देखा है और उस जर्नी पे निकल पड़े हैं। तो वो जो जज्बा है और वो जो एनर्जी है उसको ठीक तरीके से प्लेस कर पा रही है टीम। तो मुझे बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले हैं टीम के साथ इंगेज होने के, पर जितने मुझे मौके मिले हैं उसमें मुझे टीम को जानने के पर्याप्त अवसर मिले हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ बात नहीं की है, टीम के साथ काम का हिस्सा रहा हूं मैं, उनके काम को समझा है और उनके मन में किस तरह के प्रश्न है, किस तरह की स्पष्टताएं, क्लैरिफिकेशन वो पाना चाहते हैं, इस सबसे पता चलता है कि वो कितनी डेप्थ में सोच पा रहे हैं। और ऐसा इन्वायरमेंट देने के लिए साझी शिक्षा का जो एक कहेंगे कि जो कोर ग्रुप रहा है, जहां से ये विचार शुरू होते हैं, उसका काफी रोल रहा है, जहां पर लोग आके इस तरह से एक ऐसी संरचना दी गई, एक ऐसा कंडीशन इन्वायरमेंट दिया गया जहां पर हमारे यूथ्स आके इस डायरेक्शन में बढ़ पाते हैं। श्रेय, कुछ आवाज में डिस्टरबेंस है क्या? नहीं, बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं अच्छे से। अच्छा, थैंक यू जी। तो एक ऐसी टीम जब होती है, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करने के लिए तो निकल पड़ते हैं पर हमारा विजन नहीं क्लियर होता है। हमारे साथ जो लोग हैं उनको मोटिवेट करने में, उनकी काउंसलिंग करने में बहुत सारी एनर्जी और रिसोर्सेज डालने पड़ते हैं। तो मुझे साझी शिक्षा में लगा कि जो हमारे यूथ लीडर्स हैं वो एक तरीके से रेडी टू मूव हैं, वो तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और इतनी सारी चीजों से लैस हैं, वो इक्विप्ड हैं। तो इस तरह से जब हम बड़े बदलाव की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं, तब हम दूसरी चीज के साथ रखना चाहेंगे कि जो कलेक्टिव एफर्ट है उनका क्या महत्व होता है, कि जब हम मिलकर कोशिश करते हैं। मैं फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर करना चाहूंगा कि जो हमारा संविधान है वो भी ऐसी प्रणालियां विकसित करने, स्थापित करने पर जोर देने के लिए सामने आया जिसमें जो पावर्स हैं, जो सामर्थ्य है वो लोगों के हाथ में ना हो बल्कि एक ग्रुप के हाथ में हो, समुदाय के हाथ में हो। तो जो जनता है वो खुद उसको लीड करे अपनी जरूरतों के मुताबिक। तो वैसे जब हम देखते हैं तब हमारे देश की फाउंडेशन ही वैसी रही, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तब इन चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, बट उसके और जो हम हाँ जी जी वॉइस ब्रेक हो गई थी। हाँ जी जी वो एक कॉल बीच में आ गया था इसलिए। तो हम लोगों ने कलेक्टिव डिसीजंस लेने की जो सीख हमको मिली है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें सीख देता है। और हमने आसपास अपने जो एग्जांपल्स देखे हैं, जो हम पाते हैं कि कोई बड़े बड़े बदलाव जो आए हैं वो भी स्थायी तभी हो सके हैं जब हमने देखा है कि वो संस्थागत रूप से आए हैं, जब वो मिलकर किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर लोगों को बदलने की बात नहीं है, यहाँ पर किसी एक या दो व्यक्तियों की बात नहीं है, यहाँ पर बात है संरचना में बदलाव लाने की। क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं या दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तब हम वहां पाते हैं वहां हमारे और आपके जैसे जिम्मेदार लोग बैठे हुए, वो फुल ऑफ कैपेबिलिटीज हमें दिखाई देती हैं, उनमें वो समर्थ हैं, उनमें कौशल है, वो अच्छे इंसान हैं।
लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं तो प्रोडक्टिविटी जब हम देखते हैं, आउटकम्स देखते हैं मिलान करके, तब शायद अपेक्षा के हिसाब से नहीं रहते हैं उन संस्थानों के या उन संरचनाओं के। तो अगर हम गहराई में जाकर देखें तो हम पाएंगे कि उनमें हर जगह थोड़े 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 बेहतर और कर सकने की गुंजाइश रहती है। तो अगर इस दृष्टि से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी एक व्यक्ति को या किसी एक डेजिग्नेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर बेहतरी के लिए जरूरत है बदलाव की, तो बदलाव पूरी संरचना में जो है वो आवश्यक है। जब बदलाव पूरे सिस्टम में एक्सपेक्टेड है, नीडेड है, तब फिर कलेक्टिव एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति या एक दो चार व्यक्तियों का जब एक छोटी सी टीम जब इसको करने की कोशिश करती है, तब वो उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रहता, क्योंकि हम सब में सोचने की और करने की अपनी सीमाएं हैं और हमारे अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। पर जब हम एक कलेक्टिव एफर्ट की बात करते हैं, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जिसमें समुदाय के जिम्मेदार लोग भी शामिल हों, जैसे हमारी स्कूल की मैनेजमेंट कमेटीज हैं, हमारी ग्राम पंचायतें हैं, हमारे स्कूल के शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग के पदेन अधिकारीगण हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, और हम जैसे लोग प्रैक्टिशनर हैं जो साथ मिलकर इन सपनों को बुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उस धागे के रोल में रहते हैं जहां पर हम सबको इकट्ठा साथ में आने के अवसर बना सके। जब हम इतने दृष्टिकोण साथ में बैठते हैं लेकर, तब हम जो निर्णय लेते हैं वो बहुत स्थायी होते हैं और बहुत व्यापक होते हैं। जब हम बच्चों के सीख की बात कर रहे होंगे तो उस समय पंचायत का नजरिया भी उसमें शामिल होना जरूरी है कि पंचायत अपने क्षेत्र में कैसे नागरिक तैयार करना चाहती है। उसी समय शिक्षक का साथ होना जरूरी है कि डिपार्टमेंट का विजन क्या है, उसको भी इसके साथ जरूर बुना जाना चाहिए। वहीं पर बच्चों के पालक जो है, बच्चों के जो माता पिता हैं, वो भी साथ में रहने चाहिए इस सपने को देखने के समय, कि वो कैसे देख रहे हैं अपने बच्चों को, अपनी संतानों को। तो इस सबके साथ जब मिलकर हम देखते हैं, तब हम हर दिशा में देख पाते हैं। और इस तरीके से जब हम हर दिशा में देख पाते हैं, तभी जब हम जो कदम उठाते हैं वो एक दूसरी डायरेक्शन में टकराव जहां पर बच्चों का विकास हो, बच्चे बहुत कुछ सीखें, तब हम देखते हैं कि कोई इसके विरोध में नहीं है। ऐसा नहीं है इनमें से कोई कि ग्राम पंचायत ऐसा नहीं चाहती या शिक्षक नहीं चाहता। पर जब हम अलग अलग बैठकर सोचते हैं और प्लान करते हैं और कोशिश करते हैं, तब हम दूसरे नजरिए को शामिल नहीं कर पाते। इसी वजह से जो उसको हम बहुत व्यापक नहीं कर पाते हैं, वो किसी एक दो डायरेक्शन में रहता है और बाकी चीजें शायद उतने अच्छे तरीके से गौर नहीं हो पाती। पर जब हम कलेक्टिवली एफर्ट करते हैं, तब उसको हम पूरी तस्वीर को देख पाते हैं। तो इसलिए बहुत हमको इस तरफ ध्यान रखने की जरूरत है। जो हमारे अनुभव से हमने सीखा है, पिछले करीब 20 साल का जो अनुभव रहा है सोशल सेक्टर में, समझने को जो मिला है, सीखने को मिला है, उसमें यही सीखा है एक चीज जो मजबूती से, कि संरचना में अगर बदलाव आना है तभी कुछ स्थायी हो सकता है, और अगर संरचना में बदलाव आना है तो मिलकर हमको काम करना पड़ेगा। हमें कुछ लोगों को अलग तरीके से जानकारियां देने भर से काम नहीं चलेगा। लोग जानकारी से परिपूर्ण हैं, हो सकता है कुछ जानकारी और अपेक्षित हो तो और जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन हमें ग्राम पंचायतों को इसमें नेतृत्व लेना होगा, इसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज को नेतृत्व लेना होगा, इसमें शिक्षकों के साथ मिलकर ऐसे सामूहिक प्रयास करने होंगे ताकि शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट मजबूती से होता रहे, और इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ग्राम पंचायतें और स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज भी अपना योगदान करें। और जब बच्चे की बात आए, तब ये सब मिलकर सोचे, बच्चे के बारे में मिलकर प्लान करें। तो बच्चों से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे वो स्कूल हो, या फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बच्चों से जुड़ी जो जिम्मेदार इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हमें और मजबूती से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के अवसर बनाने हैं, ताकि एक दूसरे के साथ बात करें, कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। ये बिल्कुल उस तरह से है कि अगर एक पेड़ की देखभाल करनी है और उसकी देखभाल करने 6-6 घंटे में अलग अलग लोग आते हैं और वो आपस में कभी बात नहीं करेंगे, तो उस पेड़ का जो डेवलपमेंट है वो शायद उतना बेहतर नहीं होगा। पर अगर वो लोग आपस में बात करते रहेंगे कि हमने क्या किया है और क्या हमको दिखाई दे रहा है, तो जो दूसरा आगे की जिम्मेदारी ले रहा है वो ज्यादा उपयोगी तरीके से अपने इनपुट्स दे पाएगा। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा साथ मिलकर रहना जरूरी है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने की जरूरत है जहां पर ग्राम पंचायत के जो मेंबरान हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं और जो शिक्षक हैं, उनको बच्चों के विकास के लिए और क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसका एक्सपीरियंस मिल सके।
तो वो सारे अवसर हम लोग क्रिएट करेंगे। और जब हम कलेक्टिव एफर्ट करते हैं सिस्टम को चेंज करने के लिए, तब बहुत जरूरी होता है कि हम इवेंट्स में या एक्टिविटीज में अटक कर ना रह जाएं, हम प्रिंसिपल्स को उभार कर सामने लाएं। क्योंकि एक स्कूल जो एक्टिविटीज करता है, एक ग्राम पंचायत जो एक्टिविटीज करती है, उसको हो सकता है दूसरी ग्राम पंचायत कॉपी ना कर पाए, हो सकता है वहां का माहौल दूसरा हो सकता है वहां की जरूरतें दूसरी, सॉरी, पर एक स्कूल की या एक ग्राम पंचायत की जो कोशिशें हैं, उनके प्रिंसिपल्स अगर सामने आते हैं, तो दूसरी ग्राम पंचायतें भी उसको अपना सकती हैं, दूसरे ब्लॉक्स भी उसको अपना सकते हैं, दूसरे स्कूल्स भी उसको अपना सकते हैं। तो जरूरत है हमको कलेक्टिव एफर्ट करने की, ताकि सिस्टम में चेंज आए। लोगों को बदलने की दिशा में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग इन चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बस मिलकर विजुअलाइज करने की जरूरत है। और हमें संस्थाओं को फोकस करना है, जो भी कोशिशें हो उनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अगर एक मीटिंग भी होती है तो वो सेट पैटर्न के हिसाब से हो, जो संरचना है पहले से उसको साथ लेते हुए, ताकि दूसरे स्कूल भी उन सिद्धांतों को अपना सकें, दूसरी ग्राम पंचायतें इस ग्राम पंचायत से सीख सकें। इस दिशा में हमें चलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो फुल ऑफ एनर्जी टीम है सांझी शिक्षा की, वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, बहुत कुछ किया है इस दिशा में। चाहे वो कम्युनिटी मीटिंग्स हो स्कूल लेवल पर, या ग्राम पंचायत के लीडरशिप में जो मीटिंग्स हैं वो हों, जो स्कूल की जरूरतें और स्कूल के डेवलपमेंट को फोकस करती है, चाहे वो टीचर्स के साथ कलेक्टिव मीटिंग्स हो जो मंथली उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को फोकस करते हुए हैं, ताकि बच्चों की जरूरतों की पहचान हो सके और सारे टीचर्स मिलकर तय कर सकें कि आगे क्या करने की जरूरत है। तो जब हम इस तरह से आगे बढ़ते चलते हैं तो हमें नए नए और आइडियाज आते जाते हैं। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि टीम जो है वो सीखने के लिए तैयार है, एक्सप्लोर करती रहती है। तो जब इस दिशा में हम बढ़ते रहेंगे तो जो नए विचार आएंगे उनको भी हम साथ में लेते चलेंगे। और इतना बड़ा लश्कर है हमारे साथ, हमारे सरपंच गण हैं, बहुत सारा काम अपनी अपनी पंचायतों में करते हैं, बहुत सारे सपने हैं अपनी पंचायत को आगे ले जाने के, उनके बच्चों के माँ बाप हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज हैं और बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स हैं। तो एक टीम और ये जो जिम्मेदार लोग हैं मिलकर अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे अच्छा, जो हमारे बच्चों के काम आएगा और अल्टीमेटली हमारे समाज को आगे ले जाने में मदद करेगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से साझी शिक्षा टीम को और उन सारे लोगों को जो इस मुहिम में साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशीष जी। आपने शेयर किया, आपने बताया कि कलेक्टिव की जरूरत इसलिए होती है कि हम एक होलिस्टिक व्यू देख पाए जब हम सिस्टम के साथ काम करते हैं, हम एक जो कलेक्टिव विजडम है उसके साथ काम कर सकें। और यही सब इंसाइट्स हैं जो कि हमेशा आपसे हमें सुनने को जानने को मिलते हैं। और पिछले 3 साल से हम मल्टी फोल्ड और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाए बिकॉज आईसी साथ में जुड़ा रहा हमारे साथ स्टार्टिंग से, और आपकी प्रेजेंस हमें मिलती रही इन पर्सन और कॉल में। थैंक यू वंस अगेन पूरे हमें शेयर करने के लिए, बताने के लिए आपके ऑब्जर्वेशंस। ऑलराइट, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इस इवेंट में, आज के हमारे साझा सफर इस फंक्शन में। तो हम आज काफी और भी हमारे पास गेस्ट स्पीकर्स हैं, उनसे भी थोड़ा और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस के बारे में। और साथ में हमारे साथ यूथ लीडर्स भी हैं जो कि शेयर कर सकते हैं अपने काम के बारे में, उन्होंने ग्राउंड में, फील्ड में, टीचर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ कैसे कैसे क्या काम करा, और साथ में जितना काम एक्सटर्नली हुआ उतना ही काम उन्होंने इंटरनली भी किया अपने ऊपर, ताकि वो अपनी लीडरशिप में ग्रो कर सके। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा आकाशदीप कौर को। आकाश हमारे साथ एक यूथ लीडर है पटियाला में, और आकाश शेयर करेंगे कि किस तरह से थ्रू दिस वर्क जो उन्होंने काम किया क्लस्टर ट्रांसफॉर्मेशन का, आउटर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या रही उनकी खुद की। तो आकाश, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच श्रे। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। I joined ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ just after my graduation and that was in 2020। तो उस टाइम ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ to join the fellowship, it was कि I always wanted like to do something for education, क्योंकि for me education was something जो कि is connected to every other social issue we have in a world। तो like this was my main urge। and दूसरी चीज that why I chose PYLP to work in, it was because क्योंकि
this is a platform and a space where like we can also work on ourselves. So मेरे वास्ते एक बहुत sort of एक fascinating thought सीगा कि we can work on ourselves and मतलब internally grow and like skills ਦੇ ਉੱਪਰ काम करना है, फिर अपनी competencies ਦੇ ਉੱਪਰ काम करना, उस चीज़ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ. So that was my like ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਇੱਕ main motivation ਸੀਗੀਆਂ to work with the team. ਤੇ ਲਾਈਕ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ that how I have evolved as a person ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. So I will just share a small example ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ. ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਟੀਮਮੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ. ਜੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਇਤ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ, SMC ਮੈਂਬਰਸ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾੜਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤਾ. ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ. ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ we people are like we have this thought ki through collaboration या फिर through community ਦੀ engagement ਵੀ funds ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 3-4 ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪਲਾਨ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ I was the one who was telling them to collaborate and to do something for their school है ना कि and कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like ਆਪਣੀ community ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ. And like I was telling them to collaborate, but in return they made me witness that what collaboration is. And ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like sort of ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, actually ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ like how collaboration is done. It was a very sort of this experience for me ki okay like I have seen like what collaboration is. So collaboration is actually one of our values which we practice, and mere liye wo value isliye bahut special hai because I learned that value or I actually witnessed that value through people I am working with. And so ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ fascinating ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ incident. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ like how this value transformed me as a person, because I am also a product of this education system ਜਿੱਥੇ ਕਿ we have very competitive environment and like ਇੱਕ ਜੋ common human tendency ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ that I alone am enough for doing anything. So I also had this key like I can do like if I want to work in education I alone can do a lot of things. But when I see these people so I realized ki if like मैं इकल्ली अगर 100 बच्चियां ते कुछ impact पा सकती हैं, if I have a community of people and if I am working with a network of similar thoughts वाले लोग, I can then we collectively as a group can impact more number of people. And because I had these all thoughts running in my mind after that GSS, after the Gram Sikhya Sabha, and I planned this with my friends like Intikhab and Simran and Manu. So we thought that we will start working on social emotional learning of children. And I guess कि जो काम शायद मैं इकल्ली शायद मैं figure out भी ना कर पाती. So like through a community of my friends and through these people who are helping me there and we collectively are figuring out things. And through this like basically through this value of collaboration, which I unintentionally practiced and somehow I learned it from the people I was trying to convince कि तुसी करो practice collaboration. So I learned it from them and this is how this value of collaboration like totally made me like strive for something very big. And
obviously like ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਣੇ we are like making a bigger network for us and so this like ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ community ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ because ਇੱਕ ਜਣਾ is like not enough so ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ and then I like from then ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ I try to find a collaboration and how I can collaborate with more people so this was one of the value ਹੋਰ ਵੀ values we practiced like grit and compassion resilience but this I wanted to share about collaboration because collaboration is something I like also helped me to do a lot of things and I am also practicing on field ताकि जिन्ना लोगों नाल मैं काम कर रही हूँ वो भी collaborate करके ते अपनी community दे विच कुछ change लिया पान so yeah this was my sharing for collaboration as a value thank you वाओ, थैंक यू आकाश। बहुत अच्छा लगा जान के कोलैबोरेशन जैसे एक वैल्यू है जिसमें अपने सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं कि अपने ग्रो कर पाए और डेफिनेटली कोलैबोरेशन इज वेरी मच नीडेड। बहुत ज्यादा जरूरत है कोलैबोरेशन की, साथ में आके काम करने की, क्योंकि जो ये हमने टास्क उठाया है कि पंजाब के एजुकेशन को और बेहतरीन करेंगे और पंजाब की एजुकेशन के लिए सर्विस करेंगे, तो वो अकेले काम नहीं होगा। हम सभी का जब साथ मिलेगा, जब हम सभी के थॉट्स, विचार और इंटेंशन मिलेंगे, तभी हम कुछ कॉन्क्रीट काम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट वेरी डीप शेयरिंग। तो जो आकाश शेयर कर पाए, उन्होंने शेयर किया कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रही उनके लिए पिछले 1 साल में। और नेक्स्ट हम सुनते हैं बेअंत कौर से, और बेअंत हमें बता सकते हैं कि जो आउटवर्डली जो काम रहता है, जो हम क्लस्टर ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, उसमें एक हम स्पेस क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हम ग्राम शिक्षा सभा। तो ग्राम शिक्षा सभा किस बारे में है और उसके क्या इंटेंशन है, तो बेअंत और साथ में रुपिंदर हमें ग्राम शिक्षा सभा के बारे में थोड़ा शेयर करेंगे। So Beant, over to you. Thank you, Shrey. So hi, my name is Beant Kaur ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I have done my masters in human rights ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ and then ਫਿਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ Office of Refugee Resettlement ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ as a case manager for refugees and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਰੋਥ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟੀਚਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਚ, ਹਨਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ So thank you Azmat ji for conclusion and congratulations for spreading the wings of Urdu. Just a second, they just okay, yes Beant, you can continue. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब Yes. Beant, you are on mute. अगर आप unmute हाँ जी, okay. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਚ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੀਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਮਨਸ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਤ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਚ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਕਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਅੰਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਦਿਖਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਕਰਵਾਈ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮੋੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਟੀ ਮੋੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SMCI ਟੀਚਰਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਂਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੈਂਪ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਰੈਂਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ SMC ਮੀਟ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾਏ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹਾਂ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਇਸ਼ੂਸ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਪਾਏ। ਉਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SMC ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ NRA ਹੋਣ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟੈਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ सो मच। थैंक यू वियन, थैंक यू रुपिंदर ग्राम शिक्षा सभा के बारे में बताने के लिए। तो ग्राम शिक्षा सभा डेफिनेटली एक वो इनिशिएटिव है जो हमें हेल्प करता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को एक्टिवेट करने का। और जब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक्टिवेट हो जाती है किसी स्कूल की, तो वो ही फिर जितने भी फॉलोअप है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, स्टूडेंट लर्निंग को लेके, वो कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा। और सभी यूथ लीडर्स अपने अपने क्लस्टर में, अपने अपने स्कूलों में ये ग्राम शिक्षा सभा करा रहे हैं। और जैसे बेअंत ने बताया कि ग्राम शिक्षा सभा के साथ साथ एक और स्पेस, एक और कलेक्टिव है जो हम करते हैं और वो है हमारा क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग। और क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग में हम टीचर्स को साथ में लाके वहाँ पे तब बातचीत करते हैं। तो इसके लिए मैं सिमरन जीत को इनवाइट करना चाहूंगा। सिमरन हमारे साथ एक और यूथ लीडर हैं जो कि हमें क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग के बारे में बता पाएंगे। तो सिमरन, ओवर टू यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ करती हूँ। जितना कि दस्या कि ग्राम शिक्षा सभा का कंसेप्ट जो हम यहाँ पे करते हैं, और उसके साथ ही एक कैंप का कंसेप्ट है जिसको क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग बोलते हैं हम। तो ये स्पेस है जो एक टीचर्स के लिए तैयार की जाती है। इस स्पेस की हमें नीड क्यों लगी? सबसे पहले तो कि कई बार ऐसा होता है कि कई स्कूल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो कई बार दूसरे स्कूल की वीकनेस होती है, या फिर दूसरे स्कूल की वीकनेस होती है वो अगले स्कूल की स्ट्रेंथ होती है। तो वो एक जो पीयर लर्निंग है वो कई बार नहीं
कर पाते, तो उसके लिए ये एक स्पेस तैयार की जाती है। इसमें क्या होता है कि क्लस्टर जिसमें मतलब 8 से 9 स्कूल होते हैं, वहाँ के टीचर्स एक मंथ में एक जगह पे इकट्ठे आते हैं। वो अपनी सारी रिफ्लेक्शन करते हैं कि लास्ट मंथ में कैसा रहा, हमारी क्या क्या प्रैक्टिसेस रही, और उसके बाद क्या हमें आगे करने की जरूरत है, क्या हम प्लान कर सकते हैं, जहाँ हमारे क्या चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए क्या किया जा सकता है। वहां पे वो एक प्लान करते हैं अपने नेक्स्ट मंथ के लिए कि हम इसमें अब क्या करेंगे। तो वो इस स्पेस को, जो स्पेस तैयार होती है जिसमें वो रिफ्लेक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना, तो इसको हम नाम देते हैं क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग। और जो ऐसी स्पेसेस हैं, इस स्पेस को बनाने के बाद क्या हुआ, क्या आउटकम्स निकले, जो मतलब जिसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे कि एक पंडा क्लस्टर सीगा ब्लॉक पटियाला 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, और वहां पे हुई क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग। तो वहां पे क्या हुआ कि टीचर्स आए, उन्होंने सारी रिफ्लेक्शन की, वो नैस से रिलेटेड थी कि नैस में कैसे हम मतलब अच्छी अपनी परफॉर्मेंस है जो बच्चों की वो दिखा सकते हैं, और उनकी कैसे एबिलिटीज हैं और इंक्रीज की जा सकती हैं। उसको लेके टीचर्स ने एक तो उनकी नीड समझी कि हाँ, हमें बच्चों में कौन सी एबिलिटीज हैं वो इंक्रीज करने की जरूरत है। उन्होंने रिफ्लेक्शन की, तब उनको पता चला कि कौन सी एबिलिटीज अच्छी है और कौन सी एबिलिटीज पे हमें काम करने की जरूरत है। जो जिस पे लगा कि हाँ इन पे काम करने की जरूरत है, उसके लिए फिर उन्होंने प्लान बनाए, कुछ प्रोजेक्ट डिजाइन किए जो बच्चों से करवाए। जैसे बच्चों ने, ये हम देख रहे हैं इस पिक्चर में भी, कि जहां जहां पे वो गए हुए हैं, जहां फिर जो एक पंजाब का मैप बना लिया, मैप से रिलेटेड मतलब उनको एक प्रोजेक्ट दिया, वहां पे बच्चों ने अपने पसंदीदा कलर फिल किए उस जगह पे जहां जहां पे वो गए हुए हैं, जहां पे उनके रिलेटिव्स हैं। और कुछ कलर्स ऐसे वहां पे उन्होंने अलग ऐसे फिल किए जहां पे वो जाना चाहते हैं, उनकी ड्रीम है जो। इससे क्या हुआ कि बच्चों के मन में एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो उनका इंक्रीज हुआ, कि बच्चों ने खुद से बनाया, वो सारा देखा कि कहाँ पे गया, उनकी लर्निंग पावर बढ़ी। तो ऐसे और भी काफी सारे जैसे प्रोजेक्ट थे, जैसे बच्चों से क्या हुआ कि कुछ पैसे हैं जो बच्चों को दे दिए जाते हैं, जैसे कि जब जो मिड डे मील की सब्जी वगैरह कुछ भी लाने के लिए, तो वो देते हैं, तो उनको पता चलता है कि एक हफ्ते में कितने पैसे हमारे पास आए थे, उसमें से कितने खर्च हुए, एक वीक में कितने पैसे खर्च हुए, कितने हमारे पास थे और कितने बच गए। तो वो एक मतलब कि क्या है, अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्ड कर पाते हैं और प्रैक्टिकली उसको देख पाते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो वो बच्चों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और इससे क्या होता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी पावर है वो इंक्रीज होती है। तो इस स्पेस की ऐसे करके हमने आउटकम्स है जो वो हमने देखी, और इस स्पेस की जरूरत हमें इसलिए ही लग रही है, जो हम देख रहे हैं कि जो एक पीयर लर्निंग है वो इस स्पेस में हो जाती है, क्योंकि एक टीचर है वो दूसरे टीचर को कुछ बताता है, और दूसरा टीचर दूसरे टीचर की शेयरिंग सुन के वो अपने नेक्स्ट मंथ में अपने स्कूल में जाकर उस चीज को प्रैक्टिस करता है। और नेक्स्ट मंथ में जब अगली बार फिर से ये स्पेस तैयार होती है, तो वहां पे आके वो अपनी शेयरिंग करता है कि कैसे कैसे हमारी जो एक एक्सपीरियंस रहा, कैसे हमने अपनी जो ये प्रैक्टिस है उसको किया। सो इसको बोलते हैं हम क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सिमरन, थैंक यू क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग के बारे में बताने के लिए, जो हम टीचर्स के सभी क्लस्टर के सभी टीचर के साथ होल्ड करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सिमरन हमारे साथ हैं यहाँ पे। सिमरन। यस, थैंक यू सिमरन। ते हुण साडे नाल बड़े इंपॉर्टेंट शख्स जुड़े ने, रवि गुलाटी जी। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਟ ਅ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਗੈਸ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੀਅਰ from Ravi Bhaiya because of his extensive experience school leaders ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, leadership development ਤੇ systems change ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, youth ਦੇ ਨਾਲ engage ਕਰਕੇ, he has like many years of experience. I think just listening from him would be amazing. So Ravi Bhaiya, आप सुन पा रहे हैं तो would love to invite you in now. Thank you so much सिमरनप्रीत। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी।
Can you hear my voice? हाँ जी, हाँ जी। Okay. तो मुझे बहुत खुशी है आप सब लोगों से आज मिलके, और मैं बहुत अपोलोजेटिक भी हूँ कि मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ और वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वीडियो ऑन करूंगा तो शायद वॉइस चली जाएगी, तो मैंने सोचा दोबारा कभी वीडियो के साथ भी करेंगे जब मैं वापस दिल्ली आ जाऊंगा। इस समय मैं दिल्ली के बाहर हूँ। तो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरे ज्वाइन करते ही जस्ट आई थिंक थोड़ी देर बाद आशीष बोल रहे थे, तो थोड़ी देर बाद आकाशदीप ने बात करनी शुरू करी, और मैं उसी की बात से शुरू करना चाहूँगा कि जो आकाशदीप ने शेयर किया कि एक रियलाइजेशन कि कोलैबोरेशन का कितना बड़ा रोल होता है कुछ भी करने के लिए। हम कोई भी चीज़ अकेले नहीं कर सकते। आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट शिफ्ट है जो हम सबको अपने लिए बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ हमें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। हमारी स्कूलिंग ने हम सब लोग जो यहाँ हैं, हम सब ने अच्छी स्कूलिंग पाई है, और इसीलिए हम अब स्कूलिंग की तरफ ध्यान भी दे पा रहे हैं और कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी स्कूलिंग ने एक चीज़ गड़बड़ करी है, वो ये कि हमारे दिमाग में कंपटीशन को सेंट्रल पार्ट बनाया। शुरू से बचपन से बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाता है। दो भाइयों को कंपेयर किया जाता है, वो कितना पढ़ रहा है, देख तू तो पढ़ नहीं रहा, वो कितना आगे निकल गया, वो शर्मा जी का बेटा आगे निकल गया, वो किया जाता है। स्कूल भी उसको एम्फसाइज करता है, क्योंकि हमारी सारी पढ़ाई जो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन करती है कि मैंने कितना सीखा, मेरे कितने नंबर आए, और मेरे फर्स्ट आने के लिए दूसरे का पीछे आना जरूरी है। अगर दूसरा बड़ा अच्छा है तो मेरे 90% भी आ जाएंगे तो भी मैं फर्स्ट नहीं आ सकता, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सोशलाइजेशन हुई है बड़ी स्ट्रॉन्ग कि मुझे इंडिविजुअल सक्सेस पानी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम कुछ पार्ट इंडिविजुअल ही करते हैं, हमें अपना जिम्मेदारी तो इंडिविजुअली करनी ही होगी। लेकिन दुनिया में कोई भी चेंज, और खासकर सोशल चेंज, हम अकेले नहीं ला सकते, वो कोलैबोरेशन से ही ला सकते हैं। तो हमारी लर्निंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा अनलर्निंग भी है। जैसे वो पुरानी ज़ेन कथा है ना कि कप को खाली नहीं किया और उसमें और भरते गए तो जो चाय है भारी गिरती रहेगी, कुछ उसमें जा नहीं सकता। तो ये जो अनलर्निंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये देखना कि कोलैबोरेशन का कितना बड़ा रोल है। दिस कांट बी डन बाय मी अलोन, नथिंग कैन बी डन बाय मी अलोन सोशल चेंज में। और जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं सब, जो एक यूथ को इन्वॉल्व करके, आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि आप एजुकेशन में इन्वॉल्व होगे। एज यूथ वी गेट, यू नो, वी आर, देयर सो मेनी डिफरेंट करियर्स एंड वी थिंक ऑफ कि आई वुड लाइक टू डू दिस और दैट। बहुत चीजें हम सोचते हैं, लेकिन एजुकेशन इज यूजुअली द लास्ट थिंग, इट्स नॉट द फर्स्ट थिंग वी थिंक ऑफ। लेकिन एक I think education, again, like Akashdeep was sharing, कि it's at the root of everything. It's at the root of everything. कुछ भी हमें लाइफ में ह्यूमन उसमें चेंज लाना है, एजुकेशन इज एट द रूट। एंड आई मीन यूथ का आइडियलिज्म तो एक बहुत ही क्लीशेड सा एक पॉइंट है कि यूथ के अंदर आइडियलिज्म है, therefore we need to bring them, but we are all seeking meaning। मतलब ह्यूमन होने का मायने ही है कि हम एक मायने ढूंढ रहे हैं चीज में, और ऑलरेडी हमारे जो काम कर रहे हैं वो भी मैंने सुना। उसके बाद जो बात कर रहे थे कि कैसे ग्राम पंचायत ने मिलकर एक्सेसिबिलिटी का सॉल्यूशन किया, और फिर सोचा अगर हम ये कर सकते हैं तो हम ग्राउंड क्यों नहीं बना सकते। आई एम फॉरगेटिंग किसने शेयर किया था, पर मैं उसको भी सुन रहा था। उससे जो मैं उसको जोड़ना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी लेटेंट एनर्जीज ऑलरेडी हैं, सोई हुई एनर्जीज ऑलरेडी है हमारे पास। उसमें हम अगर एंटर करते हैं एक सोच के साथ और एक भावना के साथ, तो not only can we transform that situation, but we can transform ourselves. We can transform ourselves. तो it's a win-win. और also one can say, अगर मैं economics का एक term लूं, positive externalities, कि काम तो हम खुद पे कर रहे हैं, लेकिन समाज साथ बदल रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, है ना? आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं समाज को बदलने का काम कर रहा हूं और एक्चुअली फायदा मुझे ही हो रहा है। तो आप किसी भी तरीके से देखें, इट्स एक्चुअली अ विन विन। एंड मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस की तरफ ले आऊंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिकॉज आई नो आई हैव जस्ट कम इन विदाउट
अनएक्सपेक्टेडली, तो पहले से मेरे लिए इतनी जगह नहीं बनाई थी. बट आईड लाइक टू शेयर हाउ जो मंजिल का ऑफ कोर्स जो काम मैं पिछले 23-24 साल से कर रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने ही उससे सीखा है. बट मैं यहाँ पे थोड़ा बात करना चाहूँगा, ज़्यादा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है मेरा पिछले 5-6 सालों का क्रिएटनेट एजुकेशन के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे हम दिल्ली के 1000 प्लस स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ फैसिलिटेशन कर रहे हैं ऑन हाउ टू मेक द स्कूल्स बेटर. क्योंकि एक चीज तो क्लियर दिखी है कि बाकी सब अगर सेम रहे, लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल एक सर्टन टाइप ऑफ पर्सन बन जाए, एक सर्टन सोच का और एक सर्टन एबिलिटी का, तो उसी ब्लीक सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स बता सकते हैं सिस्टेमिक हैं, सही चीजों के लिए फंड्स नहीं है, सही टाइम पे फंड्स नहीं है, टीचर्स नहीं है जब टीचर्स चाहिए, एक ऊपर से प्रेशर आता है कि सिर्फ मार्क्स लाओ एग्जाम में, जबकि वी ऑल नो के the real purpose of education is not to get marks only, right? It is to build a certain kind of human being. In sub situation mein, a school can really get transformed if the leadership in the school is of a certain kind. इस thought के साथ हमने ये facilitation का काम शुरू किया 4-5 साल, 2012 में किया एक्चुअली, अब तो 10 साल होने वाले हैं. और उसमें एक चीज जो हमने देखी कि हमारे जो काम किया हमने इतने सालों में, उसमें अगर प्रिंसिपल से पूछें कि आपकी एक चीज बताए जो मेजर शिफ्ट हुआ है, और वो है उनका एक्चुअली माइंडसेट शिफ्ट, और वो ये है कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट. लीडरशिप का कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि वो अकेला आदमी जो कुछ अचीव करके दिखाता है, इज एन अचीवर, दैट इज अ लीडर. और अगर उसके साथ लोग हैं तो वो फॉलोअर के रूप में है, मतलब उनमें कोई लीडरशिप होने की जरूरत नहीं है, वो लीडर उनको गाइड करेगा और वो भक्तों की तरह आंख बंद करके वो बात सुनेंगे और करेंगे, बस. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप. इट्स अ वेरी फॉल्स कॉन्सेप्ट. उस कॉन्सेप्ट का शिफ्ट हुआ है जहां जहां प्रिंसिपल्स ने, उन्होंने बहुत इसको बेनिफिशियल पाया है, और वो ये है कि आई हैव गॉट ऑल दीज कोलैबोरेटर्स इन माय स्कूल. मेरे टीचर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ है. ये सारे लोग अगर एक पर्पस पे, एक विजन पे साथ देख सकते हैं, और हम इसका जो काम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अलग अलग लोग, अलग अलग हिस्से अपने रोल और अपनी स्ट्रेंथ्स, ये दो चीजों के हिसाब से चुन ले और उस अपने रोल की, ओन रोल की ओनरशिप ले ले बड़े अच्छे से, और कैसे वो दूसरे रोल्स के साथ जुड़ता है वो उनको समझ में आ जाए, बिग पिक्चर. ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, अपना रोल अच्छे से करना और अपने रोल को पूरे पिक्चर में वो कहाँ फिट होता है वो देख पाना और कोलैबोरेट कर पाना. अगर ये हम करें तो इट इज नॉट एक्चुअली अ बर्डन. एक अच्छा स्कूल चलाना इज नॉट अ बर्डन. यू कैन डू इट एंड यू कैन टेक इट आउटसाइड टू कम्युनिटी, जैसे आप लोग कर रहे हैं कि गांव के लोग इसमें जुड़ जाएंगे, सरपंच जुड़ जाएंगे. मैं आपके इनविटेशन का पढ़ रहा था, और एक सरपंच का जो वहां पे होता है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सरपंच का भी रोल हो सकता है. सो यू आर एक्चुअली रिमाइंडिंग पीपल ऑफ व्हाट दे कैन डू. द एनर्जी इज ऑलरेडी देयर, लेटेंट एनर्जी है, उनको ऑलरेडी मालूम है, मतलब उनके पास वो है. लेकिन ये जानना कि मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे रामायण में आता ना कि जामवान ने हनुमान को याद दिलाया कि भाई तुम जा सकते हो 100 कोस दूर लंका में. वो भूल चुका था लेकिन उसके पास एबिलिटी थी. उस तरीके का जोड़ने का काम और अपनी ओनरशिप को सीरियसली लेना, both of these things, as I said again before, I'll say it again, it is transformative for the world around you, it is transformative for the world within you, both. That's all. I'd like to stop here. Thank you so much for this opportunity, Simran, and back to you. Thank you so much, Ravi Bhaiya. Amazing to listen to you as always. Shrey, back to you. Yeah. थैंक यू सो मच रवि भैया. और आपने बताया कि कैसे हम सबका एक काम ये रह जाता है कि हम एक दूसरे के पोटेंशियल के बारे में हमेशा बताएं, रिमाइंड कराएं, और इसलिए काम करें कि हम एक दूसरे को उस तरह से हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाएं. थैंक यू सो मच. और आई रिमेम्बर एक बार आपने शेयर किया था कि आप पेड़ में गिन सकते हैं कि कितने बीज हैं, पर आप एक बीज में नहीं गिन सकते कि उसमें कितने पेड़ हैं. इट टॉक्ड अबाउट द पोटेंशियल जो एक बीज में रहती है. सो थैंक यू फॉर दैट wisdom as you always share. Okay,
और यहाँ पे हमारे साथ हरप्रीत सिंह जी हैं, और हरप्रीत सिंह जी एक सरपंच है हमारे चमारू पिंड के पटियाला में। और जब भी हरप्रीत जी से सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है, तो वो अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं, जो काम उन्होंने पिंड में एजुकेशन और स्कूल में करवाया है। और एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल निकल के सामने आता है, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे हमें दिखते हैं शख्स, ऐसे सरपंच जो कि एजुकेशन और स्कूल को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना के रखते हैं। और सामाजिक शिक्षा का काम यही है कि हम जब काम करें कम्युनिटी के साथ, सरपंचों के साथ, पंचायत के साथ, तो हम पिंड का जो मान है वो पिंड का स्कूल बन जाए। वो उस विजन के लिए हम जाते हैं। और जब हम हरप्रीत जी को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जहाँ पे आज आप जिस विजन से काम कर रहे हैं अपने अपने पिंड में, वैसे ही और पिंड के सरपंच भी आपसे इंस्पायर हो पाए। तो हरप्रीत जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर सकें, अपने बारे में थोड़ा बता सकें, थोड़ा जो आपका काम है वहाँ पे सर चमारू पिंड में, उसके बारे में थोड़ा बता पाएं। आप अभी म्यूट में हैं, अगर थोड़ा सा। हाँ, हाँ जी, हो गया अनम्यूट मेरे ख्याल से। सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, जी सुन पा रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो सब सुनने वालों को नमस्कार और धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। हम्म, अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो देखा जाए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। वाह क्या बात है, मजा आ हाँ गया जी, हाँ मेरे जी। मेरे मेरा ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈ ਗਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 400 ਬੱਚਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 300 ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। 300 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 270 ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲੇ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। बस इतना कहिए जी, मेहरबानी। जी, धन्यवाद धन्यवाद सरपंच जी। आपको देख के हमेशा ही बहुत प्रेरणा मिलती है, और एक तरह का जिसे बोलते हैं ना रोड मैप, एक तरह का आगे का रास्ता दिख जाता है कि अच्छा हम सभी और हमारे सरपंच जो वो है अलग अलग पिंड के, उनको हम इसी तरह से उनके साथ काम कर सकते हैं ताकि वो अपने अपने पिंडों में आपके जैसा काम कर सके, इंस्पायरिंग काम। धन्यवाद।
ठीक है, तो हमने अभी तक अलग अलग गेस्ट स्पीकर से जाना। हाँ जी जी ਸ਼ੇ भाई। ਬਸ maybe another few seconds ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਜੁਆਇਨਡ ਯੂ نو ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੈਗਾ almost midnight but he has made time to join and ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਿਨੀ ਫੋਰੈਸਟਸ create ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ and there are many more things which he does as well ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕੁਇਕਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ I guess ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ would love to hear some of your thoughts as well and thanks for joining ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਤੇ very empowering to young people. I feel that this is very much needed and it's a leadership training and this is what will and can transform Punjab and the entire nation. So I think you guys are very much on track. At the grassroots level ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ really very it's heartening to see and we always feel ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਣਗੀਆਂ in my own experience when we started EcoSikh lot of people discouraged us ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ when we decided that we were going to plant 1 million trees in honor of Guru Nanak Dev Ji ਤੇ Guru Nanak Dev Ji Maharaj ਦਾ 550ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 1820 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ whether it will be possible or not whether people will come forward support ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ so there was a lot of discouragement and a lot of malaise but ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ 356 ਫੋਰੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਮੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਇਹ this could not have been done without ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ they feel empowered and now we have ਅਸੀਂ 365 ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ to become the forest makers in Punjab so ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ very little budget so ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਐਂਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਲ ਗਦਗਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜਨ ਸਰ ਫॉर ज्वाइनिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर अपनी विशेस और अपने इंसाइट्स हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो अभी तक हमने काफी यूथ लीडर्स को शेयर करते हुए सुना, उनके काम के बारे में, उन्होंने कैसे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी अचीव करा। नेक्स्ट हमारे साथ जीवन है। जीवन भी एक यूथ लीडर है और जीवन एक पोइट्री के थ्रू अपने काम या अपने जर्नी के बारे में हमें बताना चाहेंगे। तो जीवन, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच श्रे। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ 3 ਮਕਸਦ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਦਊਂਗੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਦਊਂਗੀ, ਨਾਲ ਪਕਾ ਦੂੰ ਪੂੜਾ। ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਊਂਗੀ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਊਂਗੀ, ਸੌਣ ਨੂੰ ਲਾਲ ਪੰਗੂੜਾ। ਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਵਾਹ ਦੂੰ, ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ, ਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਵਾਧੂ ਬੋਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਦੂੰ ਜੂੜਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਊੜਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਊੜਾ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਇਸਦਾ ਆਬ, ਛੇੜਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਬੇਬੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਵਾਬ। ਪਿੱਪਲਾਂ ਤੇ ਬੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਇਸਦੀ ਛਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਕੀਰਤੀ ਕਾਮੇ ਕਿਰਸਾਨ, ਕੀਰਤੀ ਕਾਮੇ ਕਿਰਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਰਹੇ ਹੱਸਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू सो मच जीवन। बहुत ही ब्यूटीफुल रिसाइटेशन आपने करा इन पोएम्स का, और दिल छू गया आप ये पोएम्स बता के। थैंक यू। मनु। हाँ जी। सो एक ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੂਨਮ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
wherever you are, you make time to show up. I think last time जब ਆਪਾਂ cohort 3 ਦਾ induction program ਹੋਇਆ ਸੀ, so you came there as well. And I think ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸ਼ੇ ਬੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ. I think it really came from ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ would be amazing पूनम जी कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ अगर कुछ शेयर कर पाओगे, मेरी आवाज ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच रही है? हाँ हेलो हाँ जी, हाँ जी पूनम जी, हाँ मेरे ख्याल म्यूट हो गया ਤੁਹਾਡਾ वापस. हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, आ रही है हाँ ना, हाँ जी. ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ. ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ. ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ. ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ. Thank you for your blessings पूनम जी. Thank you. Yes Shay, you can continue. जी बिल्कुल. ऑल राइट. हमारे साथ हरीश हैं, और हरीश भी एक यूथ लीडर हैं हमारे पटियाला डिस्ट्रिक्ट में. और हरीश भी, जितने हमने कलेक्टिव्स के बारे में बात करी, चाहे वो क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग हो, चाहे वो ग्राम शिक्षा सभा हो, तो हरीश भी वो दोनों ही स्पेसेस होल्ड करते हैं. और ये स्पेसेस होल्ड करके हरीश ने बहुत सारी लर्निंग्स फाइंड करी एजुकेशन के बारे में, जो पिछले 1 साल उन्होंने यहाँ ग्राउंड में काम करके जानी. तो हरीश, आपको इनवाइट करना चाहेंगे नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्या कुछ आपकी लर्निंग रही एजुकेशन के बारे में. जी थैंक यू सिरे जी. मेरा नाम हरीश है. मैं पटियाला में काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से. मैं संजय शिक्षा में एज ए वाइल. तो जिस तरह से सिरे जी ने बताया, अब तक आपने जाना कि क्या क्या हमारी लर्निंग्स रही हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो उनमें मैंने जो मेनली ऑब्जर्व किया कि किस तरह टीचर्स मोटिवेट होते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, या फिर जिस तरह से हम टीचर बीएमटी सीएसटी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उन एंगेज कर पाते हैं. तो किस तरह के हमने जो विजन देखा, या फिर क्या क्या मेन प्रिंसिपल्स हैं, लर्निंग प्रिंसिपल्स जो यूज करते हैं, तो वो अभी मैं एक बार आपको 1 लाइन में छोटे-छोटे आपको बताना चाहूँगा. उनमें मेन तो है कि how to encourage contact between students and faculty, develop reciprocity and cooperation among students, encourage active learning, prompt feedback, emphasize time on task, communicate high expectations, respect diverse talents and their ways of learning. These are some learning principles which we use. And how motivated teachers engaged with students, we can share. There are different ways, but the common ways are think that teachers are not having so much time, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, और लेकिन फिर भी वो हरीश, आपकी बच्चों के आवाज साथ थोड़ी ब्रेक हो रही एंगेज है. रह पाते हैं. किस तरह से वो कर पाते हैं, वो एक प्री प्लानिंग हम करते हैं साथ में कि जी. हेलो, आ रही है क्लियर? थोड़ी सी हेलो. ब्रेक हो रही है आपकी आवाज बीच में. तो किस तरह से टीचर्स मैनेज करते हैं अपने आप को, मतलब प्री प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम होता है पढ़ाने के लिए भी, और वो चाहते हैं, हम भी सभी चाहते हैं कि हर बच्चे को वो प्रोवाइड कर पाएं एजुकेशन. और जिस तरह से
ज़्यादा क्लासेज होते हैं, टीचर्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी एंथुसियास्टिक वे में कैसे बच्चे को रिलेट कर पाते हैं, किस तरह से वो एंगेज कर पाते हैं अपने आप को। तो उसके लिए प्री प्लानिंग बनाते हैं कि किस टाइम क्या-क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ताकि हर बच्चे को हम पढ़ा पाएँ और क्वालिटी एजुकेशन। तो इसके साथ-साथ मतलब बच्चे को एक लाइवली मूड में किस तरह से रखना है, बच्चे को डाँटना नहीं है और बहुत अच्छे वे से कि बच्चे को जिस माहौल में हम पढ़ा पा रहे हैं या फिर टीचर पढ़ा पा रहे हैं कि उनको रिलेट कर पाएँ उसको लर्निंग को, कि वो डेली यूज़ में जो हम यूज़ कर पा रहे हैं, वो हम देख पाएँ कि बच्चा लर्न कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और इसके साथ-साथ टीचर्स एंगेज करते हैं बच्चों के पेरेंट्स को और लोकल कम्युनिटी को भी, ताकि बियॉन्ड स्कूल टाइम वो भी उनको हेल्प कर पाएँ कि किस तरह से बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर वो मैप कर पाते हैं बच्चे को कि बच्चे की बिहेवियर में किस तरह का चेंजेज़ आए हैं, या फिर बच्चे की हेल्प कर पा रहे हैं बच्चे स्कूल से जाके घर काम करवाने में, या फिर कुछ भी जिस तरह से कोई सामान लेके आना है या फिर छोटी-मोटी लर्निंग हो रही है कि तो कैसे वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं एक प्रोजेक्ट के रूप में घर पे भी। तो इस तरह की छोटी-छोटी लर्निंग है, वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन की तरह काम करती हैं और इसके साथ-साथ टीचर्स भी बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं सर हम कुछ करते हैं, नया कुछ करते हैं। तो ये मेरी छोटी-सी लर्निंग रही रिगार्डिंग एजुकेशन की। थैंक यू। श्योर। थैंक यू हरीश। मैं बताने के लिए, एक तो कौन से लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम बहुत ही डेली होल्ड करते हैं, और जब भी क्लस्टर मीटिंग करते हैं तो हम भी ट्राई करते हैं कि टीचर्स के साथ भी उस तरह के लर्निंग प्रिंसिपल को यूज करके हम वो स्पेस होल्ड करें। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो हम इवेंट के क्लोजिंग के टुवर्ड्स मूव करते हैं। आप सभी स्टार्टिंग से जुड़े रहे, साथ में थैंक यू। और सभी के लिए एक सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि हमारे साथ अरविंदर एक कोहर्ट 3 के यूथ लीडर हैं जो कि रोपड़ में काम करते हैं। तो अरविंदर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम सभी के लिए PYLP एंथम, हम सभी ने एक एंथम लिखा है। तो एंथम बेसिकली हमारे जो काम है, जो हम काम कर रहे हैं स्कूलों के साथ, टीचर के साथ, उसको दर्शाता है, और जो विजन है पंजाब का उसको भी थोड़ा सा उसके बारे में बताता है। तो अरविंदर, अगर आप एक तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे पाएं, और दूसरा आपकी इंटेंशन इस एंथम के लिए वो शेयर कर पाएं। जी, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਹਰਟ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਥਰਡ ਕੋਹਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਇਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਮ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਐਂਥਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਕੋਹਰਟ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਹਰਟ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਹਰਟ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਹਰਟ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਥਰਡ ਕੋਹਰਟ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਥਮ ਆ ਤੇ ਐਂਥਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਡੁੱਬਦਾ ਦਿਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਡੁੱਬਦਾ ਦਿਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਵਾਂਗੇ।
ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਵਿੰਦਰ। ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਲਸ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਸਮ ਆਫ them have been associated ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। Shabda, you have joined, I think, all the way from Bangalore, and Wipro has been such a strong support for us. And then Jasmeet Nair ji, I think you are also there. So I think एक open call है ना कि anyone कोई भी, because as these young leaders, you know, they've just like it's like a culmination of the first year, and the journey is still you know, they have a long way to go yet, right? So I think just staying inspired and consistently staying on the path, right? I think ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ messages, ਤੁਹਾਡੇ thoughts would be very very inspiring for the entire team to. So if anyone like would come forward and want to share, that's one. And ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਸਕ ਅਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, who is behind, like that's a common question, right, when many people are curious about to know. So I think my simple like response is it comes from people like you, right? There is no one particular person or organization or company. There are many individuals, many institutions ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ that they get the best, right? And ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, like we enable it, right? So till 30th of November ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ fundraising campaign ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ one of our supporters is matching all the contributions up to 5500 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। So chat ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ contribution ਦਾ link ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। Any one of you want to contribute and come forward, please do. It's you know, another open invitation, because your support keeps this work going on. And like I think she was mentioning ke 3 saal hai na, in September we completed 3 years, and I think this journey began with a 30-year commitment, right? So it's like all of us are here for the long haul, and it's a lifetime commitment, right? So please come forward and make sure that this
this journey continues and we only grow from here. So I think the link is there on the chat, and yeah, I think Shabda, maybe you wanted to share something, or anyone else want to come forward and just maybe extend your good wishes and blessings, will be very inspiring. Yeah. Anji, Jasmeet ji, I think ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ share ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ. जी, thank you so much. Can you hear me? ਹਾਂਜੀ. मैं ड्राइव कर रही सी, मैं गड्डी साइड ते लगा ਲਈ है क्योंकि बहुत जरूरी सी मैनू गल करनी. सांझी सिक्ख्या नाल जुड़ के एक बड़ी गहरी तसल्ली मिली हुई है कि कोई ते काम कर रहा है. मैं पंजाब दी एजुकेशन नाल ही जुड़ी हुई हां, मैं उत्थों ही रिटायरमेंट हुई है मेरी, ते बहुत उत्साह नाल जिहड़ा काम हो रहा है, जिहड़ी यंग जनरेशन कर रही है, वो सारे ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ. पंजाब दे सारे स्कूलों दी मैनू लगता है मेरे ही स्कूल ने, पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड मेरे फादर ने क्रिएट किया सी, सरदार सरबंस सिंह ने, ते सारे स्कूल मैनू लगता है पंजाब दे इस वेले 57,000 तो उपर ने, मैनू लगता है मेरे ही ने. ते जिथे 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 काम हो रहा है, शाबाश है उन्हां सारियां लई. बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ते बहुत बहुत आशीर्वाद. काम करते रहो. थैंक यू. Amazing, amazing. बिल्कुल, I think जिद्दां तुसी क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੇ, I think feelings are mutual. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਨੇ. जी. And yeah, thank you. And didn't know this very interesting story कि ਤੁਹਾਡੇ, you said your grandfather started the board. I think we would maybe some other time want to know more on that story. ठीक है, thank you. Yes, anyone else want to come forward? ठीक है. I think we are still like around. If you want to reach out separately and know more and find other ways of engaging as well. I think मेरे ख्याल साडे number, साडे email ID, social media, it's all there for you. So feel free, and thanks once again. I think it was lovely to have you all. And कोई भी जब भी पटियाले होएगा या कोई even चंडीगढ़ भी होएगा जेड़े दूरों join कीते ने. So I think would love to take you to the schools जिथे काम हो रहा है and witness it firsthand के what is the kind of change that is happening. So anyone whenever wants to make a visit, and please let us know. And yes, as I think we also pointed out, it's a great day. It's a Constitution Day. And to be honest, it was not planned. we discovered it. Oh yes, it's it is the day of living our constitutional values, and I'm glad it happened. Sometimes coincidence also surprises you, and I think it's for all the right reasons. Okay. Yes, Rab is the bigger plotter. I agree completely. There are things happening, and we are all living by. Okay. Lakhvinder ji, you just turned down. So something you want to say? No, it was a very nice hearing all. It was a very good interaction. I heard the thing I wanted to hear, so I heard about the things. So it gave me a lot of satisfaction that something is going on in Punjab, and I really appreciate that. And feel very better and good to be the part of that, this program. So good wishes and keep doing the good work. Thank you so much. Thank you, Lakhvinder ji. And I've just put my contact number as well on the chat. So anyone who wants, feel free to reach out for any ways to amplify this work so that more and more children are being supported. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. अनम्यूट करके बाय कर सकते हैं सभी को, तो ग्रेट जेस्चर.
Bye. Thank you for Bye having me. bye. Bye. Bye bye. Bye bye.